So students, today firstly we will discuss about some common names of given compounds. So let us discuss NaCl. This is sodium chloride. It is common name. This is rock salt. This is sodium carbonate. Is known as washing soda, which is we use in our houses. Sodium bicarbonate, it is mostly common name of it is baking soda, right? Sodium sulfate is known as Glauber's salt. Calcium oxide, it is known as quicklime. Calcium hydroxide, it is known as slaked lime. Calcium carbonate, it is known as marble or limestone, which we use in our houses. Calcium sulfate, so if it having 2 molecules of water, so it is known as gypsum, right? But if it is having half water molecule, calcium sulfate, so it is known as plaster of Paris. Common name of it is generally used in furnishing of houses. Copper sulfate, having 5 water molecules, generally known as blue petrol because it having blue color crystals. Magnesium sulfate, it is known as Epsom salt or H2SO4. This is known as oil of vitriol. I think this is clear. Now we will discuss some fundamental units related to the chapter. So there are some fundamental units. Temperature is measured in Kelvin, denoted by the symbol K. Mass, we can measure mass in kilogram, kg. Length in meter, denoted by m. Time in second, denoted by symbol S. Current in ampere, right? So it is denoted by symbol small a. Luminous intensity is denoted by candela, CD. Amount of substance is denoted by, or it is measured in mole, right? So these are some fundamental units. So let's move further. Now we will discuss some derived units. See, yes, now we will discuss some derived units. How we can derive the units. So this is volume. So we can measure volume in liters, liter cube, and the unit of derivation is meter per cube, right? So density, how we can write the density? Mass per unit volume. Okay, so for mass what we use kilogram, and for volume what we can use meter cube, right? So what is the unit of density, or derived unit of density is kilogram meter per cube. Kilogram meter per cube. If we want to write in centimeter, gram centimeter, we can write it gram per centimeter cube. Okay, I hope this is understood by every of you. Now move to the next thing, that is force. What is force? Mass into acceleration. So mass, what is the measuring unit of mass? Kilogram. And acceleration we used to measure meter per second square. So this whole will give us Newton. Kilogram meter per second square is known as Newton. Right? So the derived unit of force, or we can say unit of force, is Newton. So let's take another example. Work is equal to force into displacement. Again we know how we can measure force. What is the unit of force? Newton, right? We have just discussed it.
force in Newton and displacement. This is displacement. So unit of displacement is meter. So it will be Newton meter. So what is the unit of derived unit of work? Newton meter. How this is the way how we can derive the units, right? If we know the units of the every quantity. So now we will discuss about scientific notation. See student, in scientific notation we will there is a number, and that number we have to convert in 10 to power form, right? 10 notation we can say that. See this is an example 0.00005 something is given to you. तो अगर आपको इसको 10 की पावर में चेंज करना है तो आप कैसे इसको 10 की पावर में चेंज करोगे? ओके पहले तो हमें जो ये डेसिमल दे रखा है उसको क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा. फर्स्टली वी हैव टू शिफ्ट द डेसिमल. और कौन सी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं? राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट. तो अगर हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कितने पॉइंट तक शिफ्ट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तक शिफ्ट हो रहा है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5.0 इंटू 10⁻⁻6, राइट. 1 2 3 4 5 6 पॉइंट तक शिफ्ट हो रहा है तो -6. सो दिस इज रूल स्टूडेंट्स, दिस इज अ रूल. जस्ट टेक सी इफ वी शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड्स राइट. देखो हम डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. अगर हम डेसिमल को राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो वी सब्ट्रैक्ट द पावर. जो पावर होगी 10 की पावर होगी, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? 5.0 इंटू 10⁻⁻6, राइट. हमने पावर्स को क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया. क्योंकि जो डेसिमल है, हम डेसिमल को जब शिफ्ट कर रहे हैं राइट की तरफ तो हमने पावर को भी क्या कर दिया? माइनस कर दिया. ओके लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. यू कैन ओन टेक योर एग्जांपल्स. 0.0000527 इंटू 10⁻⁻2. ओके अगर ये वैल्यू आपको दे रखी है और आपको यहाँ पे इसको शिफ्ट करना है, मतलब 10 की पावर के फॉर्म में लिखना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 2 3 4 4 पॉइंट तक शिफ्ट हो रहा है तो आप इसको कैसे लिखोगे? 5.27, राइट. 5.0 इन right 27 is left here, right. You can write it. See over here you can write 5.27 into 10⁻⁻2. -2 तो ऑलरेडी दे रखा है, पर कितने पॉइंट तक आपने शिफ्ट किया है? 1 2 3 4 पॉइंट तक शिफ्ट किया है. तो हम इसमें से क्या कर देंगे? 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो क्या आ जाएगा? 5.27 इंटू 10⁻⁻6. दिस विल बी योर आंसर. ओके लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. देखो ये कोई वैल्यू दे रखी है. अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम कैसे करेंगे? डेसिमल को हमें शिफ्ट करना है 3 पॉइंट तक. तो 1 2 3 कितने पॉइंट तक शिफ्ट किया? 3 पॉइंट तक हमने शिफ्ट किया है. तो 3.4 इंटू 10⁻⁻4 तो ऑलरेडी है. 3 पॉइंट तक शिफ्ट किया है तो -3 हम इसमें से ऊपर से माइनस कर देंगे. क्योंकि ये रूल है, जब भी हम राइट की तरफ अगर हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं तो जो पावर्स है हम उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, राइट. सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -4 -3 इट विल बी -7. आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ वी विल मूव टू आवर रूल नंबर सेकेंड. व्हाट इज दैट? ये देखो कोई वैल्यू आपको दे रखी है, इतनी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है. तो अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है, आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो? आप वी आर मूविंग फ्रॉम right to left, right. So count 1 2 3 4 5 6 7 right. कितनी जीरो है 9 से पहले? तो it will be 7. So 9.0 into 10⁻⁷ हम उसको लिख सकते हैं. So what is rule here? Why we have not put here -7? So if we shift decimal towards left, power becomes add. देखो अगर हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, देखो लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. ओके तो जो पावर्स होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, राइट. +7 नॉट -7. ओके टेक अनदर एग्जांपल. 832.14 इंटू 10⁻⁵. ये वैल्यू दे रखी है कोई. अगर हमें इसको शिफ्ट करना है, अब हम कहाँ पे करेंगे? राइट की तरफ, राइट. तो 1 2 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे लगाएंगे. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 8.3214 इंटू 10⁻⁵ तो ऑलरेडी है. तो कितने पॉइंट हमने शिफ्ट किया? 2 पॉइंट शिफ्ट किया. तो वी विल पुट हियर 2 +2. सो वी विल
ऐड द पावर मीन्स लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो पावर ऐड करेंगे, राइट की तरफ लेके जाएंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 + 2 कितना हो गया 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो अपनी तरह से। यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल लाइक इफ आई एम राइट 3 6 10⁴। अगर मैंने कोई वैल्यू लिख दी, ठीक है, अगर मुझे इसका फाइंड आउट करना है तो अगर इसका डेसिमल मैं शिफ्ट करूँ तो कैसे करूँगी, इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। यस 1 2 3 कितने पॉइंट तक शिफ्ट किया मैंने, 3 पॉइंट तक शिफ्ट किया। तो वट आई कैन राइट 4.812, ठीक है 3 6। अभी तो लिखो ये, उसके बाद आगे अगले उसमें बताते हैं आपको कि कैसे इनको कैसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो 10⁴ तो ऑलरेडी है ही, कितने पॉइंट और शिफ्ट किए हमने, 3 पॉइंट शिफ्ट किए। तो हम इसमें कितना ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो 4.81236 10⁻7। ओके, सो आई होप दीज 2 points आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now we will see another examples related to it. So let's do the numericals related to it. See, there is a numerical. What is given? Express following SI base units using the power of 10 notation. कुछ आपको SI units दे रखी हैं, उसको आपको 10 नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे कर सकते हो उसको। सी 1.35 मिलीमीटर 1.35 मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है 10 की पावर में। तो कैसे करेंगे, हमें पता है वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मिलीमीटर। यस, अगर 1 मीटर 10⁻3 मिलीमीटर के इक्वल है तो हम 1.35 मिलीमीटर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। ओके, सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो व्हाट वी विल गेट 1 मीटर इंटू 1.35 into 10⁻. This would be our answer. Then how it will be answer? So 1 meter into 1.35 divided by this term. So after solving it, what we get 1.35 into 10⁻³ meter. Okay, this will be our answer. I hope this is clear. What is the next question? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू कन्वर्ट वन डे को हमें 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। आवर्स को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। आफ्टर दैट वी विल कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकंड्स, 24 इंटू 3600। तो वी विल कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स। सो 1 डे किसकी इक्वल हो गया, 24 इंटू 3600 सेकेंड्स के। अब इसको मल्टीप्लाई करके वी विल गेट दिस वैल्यू, राइट। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट दिस वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ में कन्वर्ट करना है, 10 नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हमें देखो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रहे हैं हम। तो हमारा कहाँ जा रहा है सिंबल, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं। तो मतलब जो डेसिमल है वो क्या है, सी 1 2 3 4 मीन्स 4 पॉइंट तक हमें डेसिमल लगाना है, 8.64, राइट। सो वी कैन राइट 8.64 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर। 4 किस लिए आया, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं, और 4 तो जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब अगला देखो क्या है, 6.45 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है। तो हाउ वी कैन डू इट, we know 1 milliliter is equal to 10⁻⁻6 meter cube, right। और 1 मीटर क्यूब होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल। सो 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड 6.45 मिलीलीटर। सो जस्ट मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज एंड वी विल गेट आवर आंसर। ओके, अगला हमारा नेक्स्ट है हमारा 48 micrometer. The symbol is micro, right? And you know I have given you the list, so where you have also seen the value of micro. 1 micro is equal to 10⁻⁻6 मीटर की इक्वल होता है। तो 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻6। तो 48 माइक्रोग्राम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 48 को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट व्हाट वी विल गेट, सी दिस इज लाइक दिस 48 इंटू 10⁻⁻6
अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड तक मूव कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड कितने डेसिमल पॉइंट तक, 1 डेसिमल पॉइंट, राइट। सो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 4.8 इंटू 10⁻⁻6 तो था ही हमारे पास, एक पॉइंट मूव हुआ है, 1 पॉइंट, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो वट इट विल बी 4.8 इंटू 10⁻⁻5, राइट। सो दिस विल बी आवर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। सो वट इज लेफ्ट, only one point is left with us, that is inches. So this value is given in inches, we have to convert in value of 10. So how we can convert it, see, we know 1 inch is equal to 2.54 into 10⁻⁻2 meter. Okay, 1 इंच की जो वैल्यू होती है वो मीटर्स में इतने इक्वल होती है 2.54 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये जो वैल्यू आपको वो लर्न करनी पड़ेगी, राइट। तो हमें कितने इंचेस की निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, वी जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट एंड वी विल गेट द आंसर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस अगेन एंड अगेन। Okay, let us see one more numerical related to it. Express each of following in SI units. Okay, पहले तो हमने 10 की नोटेशन में कन्वर्ट किया था, राइट। अब हम क्या करेंगे, express each of following in SI units, right. We have to convert in given SI units. So see, 93 miles, million miles, right. Million miles is given. What we have to do, we have to convert in meter. लेंथ की जो यूनिट होती है ऐसा यूनिट मीटर, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जो 1 माइल है वो उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 10⁻³ मीटर। सो 93 मिलियन माइल्स, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁻⁶, लाइक, ओके। सो 93 converted into million 10⁻⁶ into, we will multiply this by this value, क्योंकि हमें मिलियन में कन्वर्ट करना है, तो हमारी जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मीटर में। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5 फीट टू इंचेस। 5 फीट टू इंचेस को हमें किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी, 5 फीट, पहले जो फीट है उसकी इंचेस कन्वर्ट करो, फीट, यस। 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फीट, तो 5 इंटू 12 प्लस 2, सो वट इट विल बी 62 इंचेस। अब हमें पता है, इंचेस का भी हमने क्वेश्चन किया था, वी नो 1 इंचेस किसके इक्वल होता है, 2.54 इंटू 10⁻⁻2 मीटर के। ओके, हमें पता है कि 1 इंच की जो वैल्यू है वो कितनी है, इतने मीटर के इक्वल है। तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 62 इंचेस। जस्ट मस्ट मल्टीप्लाई 62 बाय दिस, वी विल गेट द वैल्यू, राइट। सी हियर व्हाट इज हैपनिंग, 157.48 10⁻⁻2 मीटर इज हियर, राइट। अब हम इसको अगर फर्दर मॉडिफाई करके लिखते हैं, देखो अगर हमें इसको फर्दर मॉडिफाई करके लिखना है तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमें मूव करना पड़ेगा, तो जो डेसिमल है वो कहाँ आएगा, 1.5748 इंटू 10⁻, देखो इधर यहाँ पे 2 थी ऑलरेडी। अब हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं तो पावर क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻0 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1.5748। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो हमारा क्या क्वेश्चन है, दैट इज 100 माइल्स पर आवर, कि जो 100 माइल्स है एक आवर में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसको जो माइल्स है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में, जो सबसे स्मॉल यूनिट, मतलब SI यूनिट होती है, ठीक है। तो जो देखो हमें पता है जो 1 माइल है, 1 माइल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1609.34 मीटर। 1 माइल इतने इक्वल होता है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 माइल्स की निकालनी है। तो 100 माइल्स की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके, और 100 माइल्स की कितने आवर्स में, पर आवर, राइट। सो पर आवर में अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम किस में हमें वैल्यू निकालनी है, मीटर पर सेकंड में। ओके, तो कितने सेकंड्स होंगे 24 आवर्स में, दैट इज 3600। सो वी विल डिवाइड दिस होल बाय 3600। सो व्हाट वी विल गेट, 44.7 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी आवर वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर।
Now see what is left. This is left. We have to convert 0.7 angstrom. So angstrom is the unit of wavelength. wavelength की यूनिट है, इसको हमें कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो हमें पता है कि जो 1 एंगस्ट्रॉन है वो किसकी इक्वल होता है, 10⁻10 मीटर. राइट, 10⁻10 मीटर के 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल होता है. तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंपली इससे मल्टीप्लाई करके. वी जस्ट मल्टीप्लाई इट 0.74 इंटू 10⁻10. अब यहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं तो 7.4, तो क्या हो जाएंगी पावर्स, यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. तो 7.4 इंटू 10⁻11. अब 46 नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. राइट, इसको कन्वर्ट करना है तो बेसिक क्या है, केल्विन में टेम्परेचर. ऐसा यूनिट तो केल्विन ही है ना, अभी हमने पढ़ी थी यूनिट्स. तो ऐसा यूनिट में केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं केल्विन में, हम इसको क्या कर देंगे, सिंपली 273 में ऐड करके हम इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे. राइट, अब है 150 पाउंड्स. राइट, 150 पाउंड्स दिए हुए हमें, उसको कन्वर्ट करना है. जो पाउंड्स है उसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, दैट इज द यूनिट ऑफ मास की यूनिट है, उसको किलोग्राम में हम कन्वर्ट करेंगे. जो बेसिक यूनिट SI यूनिट है हमारी. तो जो 1 LB है वो उसकी वैल्यू होती है 0.45359 किलोग्राम. राइट, तो इसको हम पाउंड्स में मेजर कर सकते हैं. तो 1 LB की वैल्यू होती है 0.45359 किलोग्राम. तो हम 150 पाउंड्स की कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके. सो दिस विल बी आवर SI यूनिट्स. सो आई होप दिस इज क्लियर. देखो फर्स्ट जो हमें दिया हुआ था उसमें हमें SI यूनिट्स थी हमारे पास लगभग, और यूनिट्स थी कुछ, तो हमें उसे 10 की नोटेशन में कन्वर्ट करना था, जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया. राइट, और सेकंड में हमने उसका अपोजिट किया है. ठीक है, हमें सिंपली क्वांटिटीज दी हुई हैं और हमने क्या किया, उसको क्वांटिटीज को SI यूनिट में कन्वर्ट किया कि जो उसकी SI यूनिट्स है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ एनी डाउट प्लीज आस्क.